بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا صاحب کعبۃ حسین جد الحسن والحسین ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی قرآن المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا صلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کا شرف حاصل پروردگار اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں قل اے نبی کہہ دیجئے اے نبی مانگ لیجئے اے نبی مطالبہ کیجئے یہ لفظ قل قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ جہاں پر بھی قل آیا حالانکہ اس قل سے مراد ہے اے نبی آپ کہیے کیا قرآن کی ساری آیات نبی نے نہیں کہی قرآن کی تو ساری آیات زبان مصطفیٰ سے نکلی ہیں ایک آیت نمبر 1 سے لے کے 6666 آیات کی ٹوٹل تعداد زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے لیکن جس میں اللہ کہہ رہا ہے قل اس کا مطلب ہے اے نبی بار بار کہے اے نبی بار بار کہے اور اس آیت میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے مجھ سے کچھ مانگ سارے نبی خود اللہ سے مانگتے ہیں یہ مصطفیٰ کا ناز ہے مصطفیٰ کا لاد ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مانگ اللہ کہہ رہا ہے کچھ مانگ اے نبی کچھ مانگ لیکن قل کا مطلب وہ کیا سمجھے جنہوں نے قل مردے بخشوانے کے لیے ہی پڑھنے ہیں حالانکہ یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں زندوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے اور قرآن انسانیت کو وہ چلا بخشتا ہے کہ زندہ انسان اس وقت تک باضمیر ہوتا نہیں جب تک قرآن کا عرفان نہ آ جائے قل میرے نبی کہہ میرے نبی مان رب ادخلنی مدخل صدق کہ میں جہاں بھی جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور جہاں سے پلٹوں سچائی کے ساتھ پلٹوں جہاں جاؤں تو سچائی کے ساتھ جہاں سے پلٹوں تو سچائی کے ساتھ لیکن میرا نبی کام بڑا مشکل ہے اس لیے وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اس لیے اس کام کے لیے میری بارگاہ سے ایک مددگار مانگ لے سلطان النصیرہ مانگ لے ایک مددگار مانگ لے مدد نہیں مددگار مانگ واجعلنی من لدنک میرے نبی میری بارگاہ سے ایک مددگار مانگ لے اس نبی کو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مددگار مانگ لے ایک نبی نے خود مانگا ایک نبی نے خود مانگا نبی کا نام ہے موسیٰ نبی اور نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی
जुबान की गिरा को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें, और इस मिशन के लिए मुझे एक वजीर अता कर जो मेरे अहल से हो। हारून अखी, वो कोई और ना हो, वो मेरा ही भाई हारून हो। अल्लाह ने मूसा की दुआ पर वजीर अता किया हारून। अब जरा सोच के बताएं कि जब अल्लाह मूसा जैसे नबी को वजीर उसके अहल से उसका भाई देता है तो सैयदुल मुरसलीन को वजीर महल्लेदारों से तो नहीं देगा। मेरे रसूल मेरी बारगाह से मांग। और अगर आयत में ये मिल्लतुनका का लफ्ज ना होता तो लोग कहते कि पैगंबर ने तो खुदा को मांगा था। अभी लफ्ज मौजूद है फिर भी लोग कहते हैं पैगंबर ने कहा था तीनों में से एक अता कर। लेकिन अल्लाह ने मिल्लतुनका लफ्ज आयत में रख के शर्त लगा दी, मिल्लतुनका ऐसा वजीर मांग। मिल्लतुनका के मानी है जो तेरे वजूद का मजहर हो। मैं बात को समझा ही पाया, आवाज तकी हुई है लेकिन जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मेरे मोहतरम सामीन, मिल्लतुनका अगर ये समझ में आ गया तो सुल्तान नसीरा समझ में आना बड़ा आसान है। ये कमीज मेरे कुलम में है, मेरे मिल्लतुनका में नहीं, लेकिन मेरी आंखें मेरी लदुन्नी में हैं। कोई कमीज मांगे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन कोई आंख मांगे तो नहीं दे सकता। कुरान कहता है मिल्लतुनका, वो वजीर मांग जो तेरी लदुन्नी से हो। अल्लाह ने कहा तू मेरा महबूब है, तू महबूब किबरिया है, तू नूर अव्वल है, तू वजूद अव्वल है, तू ज़ात अव्वल है, तू नुक्ता अव्वल है, तू दाने सुबल है, तू मौला कुल है। इसलिए तुझे वजीर ऐसा मिल्लतुनका दूंगा जिसकी आंखें उसकी नहीं होंगी, मेरी होंगी। जिसकी जुबान उसकी नहीं होगी, वो मेरी होगी। जिसके हाथ उसके नहीं होंगे, वो मेरे होंगे। जिसके कान उसके नहीं होंगे, वो मेरे होंगे। बल्कि मैं तुझे ऐसा मिल्लतुनका वजीर दूंगा कि जब कभी भी मेराज के पर्दे में बोलूंगा उसकी जुबान के लहजे में बोलूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुल्तान नसीरा, ये सुल्तान नून के ऊपर दो जबर हैं, तो सबर। सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं, जिसने नूरानी कायदा भी पढ़ा हो वो भी इन दो जबरों से वाकिफ है। अरबी में इसे कहते हैं नूने तनवीन। नूने तनवीन जब किसी चीज पे आता है तो उसका मानी बन जाता है। ये काम कल भी हो रहा था, ये काम आज भी हो रहा है, ये काम आइंदा भी होगा। जैसे अल्लाह का नाम है गफूर, गफूर के मानी है बख्शने वाला। लेकिन जब गफूर न आता है तो इसका मानी है कल भी बख्श रहा था, आज भी बख्श रहा है, हमेशा बख्शता रहेगा। कहा वजाल मिल्लतुनका सुल्तानन, ऐसा सुल्तान दे जो कल भी सुल्तान था।
जो पहले भी नसीब, पहले कब ऐसा सुल्तान नसीब जिसने अल्लाह के हर नबी की मदद की हो। नहीं, ऐसी खामोशी से नहीं, मैं फिर कुरान की आयत की दलील देता हूँ। सूरत अल हदीद आयत का नंबर 25, परवरदिगार कहने वाले या लमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल गैब, एक जात मेरे नबी तेरी मदद के लिए वो है जिसने अल्लाह के हर नबी की मदद छुप के की है। और अगर अभी भी सुल्तानन नसीरन यानी नून तनवीन की समझ नहीं आई तो तालिब इल्म इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता कि पैगंबर ने खैबर में कहा था काला उसे दूंगा राजोलन कर्रारन गैर फर्रारन। राजोलन जो कल भी मर्द था आज भी मर्द है, कल भी मर्द रहेगा। कर्रारन कल भी जम के लड़ा था, आज भी हमेशा। गैर फर्रारन न कल कभी भागा था न आज भागा है। ये जो फर्रारन लफ्ज़ है ना, इस पे बड़ी बहस हुई, आप सारे सोशल मीडिया से वाबस्ता होंगे। अभी चंद दिनों पहले बड़ी बहस हुई मौजूद हुई कि फर्रार का मानी क्या है। कोई साहब कह रहे थे आप फर्रार का मानी भागने में न लें, आप कहें कि तशरीफ ले गए थे। और सामने वाले भी उसी मसलक से ताल्लुक रखने वाले कह रहे थे मैं क्या करूं, जब फर्रार का मानी ही भागना है तो तशरीफ ले गए कैसे कहें। ये दो नून तनवीन नाम कुरान ने नहीं दिया, बेतकी आवाज आप तक आ रही नाम नहीं लिया कुरान ने। अल्लाह ने जहां भी इस सुल्तान नसीर का कुरान में तज़किरा किया तो नाम नहीं लिया, इसकी सिफतें बताई। नाम क्यों नहीं लिया? नाम इसलिए नहीं लिया ताकि मोमिन के कलम का इम्तिहान हो कि कौन कुरान को समझता है और कौन कुरान को बस रट्टा ही लगाता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में दो तरह की आयत रखी, आयत मुहकम और आयत मुतशाबा। किसी ने इमाम सादिक से पूछा था कि अल्लाह को कुरान में आयत मुतशाबा रखने की क्या जरूरत है। आयत मुहकम जिसमें हुक्म साफ है, आयत मुतशाबा जिसका हुक्म साफ नहीं, किसी बारे से कुरान से पूछना पड़ेगा। जब तक न पूछेंगे आयत समझ में नहीं आएगी। इमाम से पूछा कि यह आयत मुतशाबा कुरान में क्यों रखी? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं इसलिए ताकि क़यामत तक किसी बार से कुरान का इंतजार रहे। तो कुरान में जहां भी अली का तज़किरा किया जरूरत पड़ती है, नाम नहीं लिया, सिफतें बता। किताब का नाम है कोकबे दुर्री, लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद सालेह कश्फी सुन्नी। वो अपनी किताब में कहते हैं एक मर्तबा अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम ने मदीने से अली अलैहिस्सलाम ने मदीने से शाम के सफर का इरादा किया। बस बड़ी जल्दी में हूँ, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है। अली अलैहिस्सलाम ने मदीने से शाम का सफर का इरादा किया। 4 सहाबा को साथ लिया, हजरत मालिक अश्तर, हजरत मिकदार, हजरत अबू जर और जनाब कंबर। इन चारों में से कंबर को मुखातब होकर कहे कंबर मेरी सवारी लाओ। जनाब कंबर अस्तबल में दाखिल हुए। अस्तबल में बहुत से घोड़े थे, अस्तबल में अशद भी था, अस्तबल में उकाब भी था, अस्तबल में तुलबल भी था, अस्तबल में अरबी घोड़े भी थे। कंबर ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही कंबर की आवाज बुलंद हुई या अली मदद।
रकाबों में वो कदम रखे जिसमें वो नालैन रहती है जो अर्श तक जाती है। रकाबों में कदम रख के अली ने सफर शुरू किया। 4 सहाबा साथ हैं, अली चल रहे हैं मदीने से शाम की तरफ। आधा रास्ता आया कि मेरे मौला ने सफर का रुख मोड़ लिया। जैसे ही सफर का रुख मोड़ा, मालिक एस्टर भी मुड़ गए, मालिक एस्टर भी मुड़े, अबू ज़र भी मुड़ गए, अबू ज़र भी मुड़े तो मिक़दाद भी मुड़ गए, कम्बर भी मुड़ गए। फिर रुख तब्दील करके आधा सफर तय करके मेरे मौला ने घोड़े को रोका, रोक के मुस्कुरा के कहा, मालिक एस्टर हम कहाँ जा रहे थे? कहा आका शाम। तो कहा आपने पूछा क्यों नहीं कि सफर का रुख क्यों मोड़ा है? मालिक एस्टर कहते हैं पूछने की जरूरत क्या, मेरा ईमान है अली जिधर भी जाए सिरात मुस्तकीम बनाता है। अली जिधर भी जाए सिरात मुस्तकीम बनती है। अली मुस्कुराए और फिर दोबारा अपने घोड़े पे सवार हुए। कहा मालिक एस्टर मैंने इसलिए रुख मोड़ा है कि मैंने लोहे महफूज का मुलाहजा किया और मैंने देखा कि एक राहब अपने घर में इंजील पढ़ रहा है। मैंने चाहा कि उसे दावत तबलीग हक करूं, इसलिए मैंने सफर का रुख मोड़ा। थोड़े फासले में पहुंचे कि सामने एक मकान आ गया। खिड़की के सामने बैठा हुआ राहब इंजील की तलावत कर रहा था। एक मर्तबा घोड़ों के कदमों की आवाज सुन के राहब ने आंखों से अंजीर हटाई और अली के चेहरे की तरफ देखा। मुस्कुरा के कहता, सुर्खपोश जवान मेरा आप पर सलाम, आप कौन हैं? अली मुस्कुरा के कहते हैं मेरे बारे में इंजील में नहीं पढ़ा, मेरे बारे में इंजील में नहीं पढ़ा। वो कहता मैंने तो इंजील भी पढ़ी, मैंने तो ज़बूर भी पढ़ी है, मैंने तो कुरान भी पढ़ी है। अली मुस्कुरा के कहते हैं पढ़ी है तो फिर खुद जान मैं कौन हूँ, और अगर जानने की बात है तो कायनात में मुझे अल्लाह और मोहम्मद के सिवा कोई जानता ही नहीं। वो कहता तेरा नूरानी चेहरा बताता है, अगर इंजील के मुताबिक देखूं तो तेरा नूरानी चेहरा बताता है कि तू ईसा इब्न मरियम है। अली मुस्कुरा के कहते हैं नहीं मैं ईसा इब्न मरियम नहीं, वो मेरे चाहने वालों में से है। तो आप जिस तरह सुने मैंने जुमले मुक़द्दस से वैसे ही पढ़ने हैं। अली फरमाते हैं वो मेरे चाहने वालों में से है। उसने कहा अगर मैं तौरात के मुताबिक देखूं तो मुझे तेरा चेहरा लग रहा है कि तू मूसा कलीमुल्लाह है। अली मुस्कुरा के कहते हैं नहीं वो भी मेरे हौबदारों में से है, वो भी मेरे हौबदारों में से है। राहब ने मसनद छोड़ी, बाहर आया, आके कहता है अपने अर्शी कदमों से मेरे घर को जीनत दो। मौला को मसनद पे बिठा के खुद नीचे बैठा, कहता है आप तौरात ज़बूर इंजील की बात करते हैं, बताएं आप कौन हैं? अली फरमाते हैं आपने तौरात में कोई ऐसा नाम तो पढ़ा होगा जिससे आप वाकिफ नहीं। उसने कहा हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने एक नाम पढ़ा है ताब ताब। अली मुस्कुरा के कहते हैं ये मेरा नाम नहीं, ये मेरे सरदार मोहम्मद का नाम है। ये मेरे सरदार मोहम्मद का नाम है। उसने कहा फिर मैंने तौरात भी पढ़ी है, उसमें भी एक जुमला पढ़ा है। कहा कौन सा? कहा मैंने उसमें एक नाम पढ़ा है मीत मीत। अली मुस्कुरा के कहते हैं यह भी मेरा नाम नहीं, यह भी मेरे सरदार मोहम्मद का नाम है। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं फिर आपका नाम क्या है? अली मुस्कुरा के कहते हैं इंजील में मुझे एलिया कहते हैं, ज़बूर में मुझे ज़ंजबील कहते हैं। राहब की हैरानगी बढ़ रही थी कि अली मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के कहते हैं पहले आसमान वाले मुझे अब्दुल हमीद कहते हैं, दूसरे आसमान वाले मुझे अब्दुल मजीद कहते हैं, तीसरे आसमान वाले मुझे अब्दुल समद कहते हैं और चौथे आसमान वाले मुझे ज़ुल अली कहते हैं, पांचवें आसमान वाले मुझे अली अल आला कहते हैं और छठे आसमान पर मेरा नाम मज़हर जुल जलाल है। अली खामोश हुए कि राहब खामोशी से पूछता है आपने सातवें आसमान वाला नाम क्यों नहीं लिया? अली फरमाते हैं सातवें आसमान पर मेरे नाम को एक राज में रखा गया। वो कहता राज में, वो क्यों? अली फरमाते हैं इसलिए उसके साथ अर्श है, अर्श पे एक पर्दा है, उसने जब भी बोलना हो मेरे लहजे में बोलता है।
आसमान पर अब्दुल हमीद, दूसरे आसमान पर अब्दुल मजीद, तीसरे आसमान पर अब्दुल समद, चौथे आसमान पर ज़ुल अली, पांचवें आसमान पर अली उल आला, छठे आसमान पर मज़हर ज़ुल जलाल, सातवें आसमान पर मेरे नाम को राज में रखा। और उसने कहा नहीं, ये जो चार आपके साथ हैं, ये कभी आपको अली कहते हैं, कभी आपको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, आपका असली नाम क्या है? अली मुस्कुरा के कहते हैं असली नाम क्या बताऊं? अरब वाले मुझे इमामुल नहल कहते हैं, मेरे बाबा मुझे अबुल हसन कहते हैं, मेरे नबी मुझे अबू तुराब कहते हैं, और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कदमों पे हाथ रख के राहत करते तौरात ज़बूर इंजील से तो तेरा तारुफ आ गया। जिस किताब की तबलीग के लिए आप यहाँ आए हैं और मुझे दावत तबलीग की है, क्या उसमें भी तेरा कोई नाम है? अली मुस्कुरा के कहते हैं उस किताब को कुरान कहते हैं, और वारिस कुरान ने कहा था अल कुरान मालियुन वालियुन माल कुरान, और सुन रहा उसकी इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह की बे के नीचे एक नुक्ता है और वो मैं अली हूँ। अब कुरान से तारुफ आ रहा है, अली मुस्कुराते भी जाते हैं, बताते भी जाते हैं अलहम्द की सिराते मुस्तकीम मैं हूँ, सूरह बकर की ज़ालिकल किताब मैं हूँ, सूरह बकर का अनफुसना व अनफुसकुम मैं हूँ। अली कहते हैं कुरान में आले इमरान मेरे बाबा की शान में नाज़िल हुई। कुरान में सूरत रहमान ने अल्लाह का चेहरा इस अली के चेहरे को कहा। सूरत रहमान में वत्तीन वज़्ज़ैतून मेरे ही बेटों की कसमें हैं, और फिर मुस्कुरा के कहते हैं सूरत कदर में जिसमें सलाम आया वो मेरी ही ज़ौजा है। मेरे मुहतरम सामीन, अगर कुरान से अली का तारुफ पढ़ना हो तो फिर एक मजलिस नहीं, अशरा चाहिए। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले को इसका अज़ीम अता फरमाया, और बिलखुसूस सैयद अली रज़ा अल्लाह उनके मुकाम को बुलंद फरमाए। ये उनका जो औलाद का हुक्म था, वरना उनके नासाजी थी, मैं हुक्म को टाल नहीं सका, इसलिए फिर कभी ज़िंदगी रही तो मैं कुरान से अपने मौला का तारुफ करूँगी इंशाअल्लाह। अज़ादारों, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को दो फर्जंद थे। मैं इस मुसाइब को उस बीबी के नाम करना चाहता हूँ जो मदफूना शाम है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को दो फर्जंद दिए। वारिस इब्राहीम इस्माइल को एक फर्जंद दिया जिसका नाम है महलाईल। महलाईल को एक बेटा दिया जिसका नाम है अर्पशंद। अर्पशंद की औलाद में से अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम है कैस। कैस को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम है उमरुल कैस। उमरुल कैस हलब का बादशाह है, शायर भी है और मोमिन भी। उमरुल कैस मोमिन है, शायर है। उसे पता चला कि अल्लाह की कुल्ली रहमत दुनिया में तशरीफ ला चुकी है। उमरुल कैस के पास औलाद नहीं थी, उसने चाहा कि मैं कायनात की रहमत से औलाद तलब करूं। उमरुल कैस चल के मदीने आया। मेरे नबी मिंबर पर जलवे पगड़ थे कि सामने से उमरुल कैस को आते देखा। जब उमरुल कैस को देखा तो रसूल ने मिंबर छोड़ा। मिंबर छोड़ के आगे बढ़ के उमरुल कैस का इस्तकबाल किया। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह, आपने तो कभी किसी बादशाह की ताज़ीम नहीं की।
یہ آج کیا ہوا کہ آپ منبر سے اتر کر چل کر عمر القیس کے پاس گئے؟ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا یہ کوئی عزت ہے؟ یہ عمر القیس کی عزت نہیں، یہ کوئی عزت ہے خاطر تواضع کی۔ خاطر تواضع کے بعد میرے رسول نے پوچھا عمر القیس کیسے آنا ہوا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہیں اللہ کی رحمت اور میرے پاس اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے عمر القیس، میں جہانوں کی رحمت ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا نہیں بیٹی عطا کرے گا، اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اگر بیٹی کی دعا کی ہے تو بتا میں اس کا نام کیا رکھوں؟ رسول فرماتے ہیں اس کا نام ام لباب رکھنا۔ ام لباب عمر القیس کو اللہ نے عطا کی۔ جب عمر القیس کے ہاں بیٹی آ گئی اب پرورش کر رہا ہے۔ ایک دن خواب میں عمر القیس نے دیکھا کہ کوئی ہستی ہے جو کہتی ہے عمر القیس اس بیٹی کو فن حرب سکھا۔ عمر القیس نے صبح بیٹی سے کہا بیٹی آپ کو میں تیر چلانے کا انداز سکھاتا ہوں۔ رو کے کہتی ہے بابا یہ فن تو بیٹوں کو سکھائے جاتے ہیں بیٹیوں کو نہیں۔ عمر القیس کے ہاں یہ بیٹی پرورش کر رہی ہے کہ ایک دن خواب میں بی بی رباب نے دیکھا کہ کوئی پرانی مسند ہے، مسند پہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، پردے سے نور نکل رہا ہے، کچھ بیویاں اس کا ہاتھ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی رباب پوچھتی ہے یہ بی بی کون ہے جو مسند پہ بیٹھی ہے؟ جواب ملتا ہے رباب اگر تو پسند کرے تو تجھے اپنی بہو نہ بنا لوں۔ باہرے کیا عظمت ہے، رباب اگر تو پسند کرے تو میں تجھے اپنی بہو نہ بنا لوں۔ اور رباب کہتی ہے بی بی آپ ہیں کون؟ کہا جو کل خط آئے گا اس میں میرا تعارف ہوگا۔ صبح ہوئی، یہ بی بی رباب کو عمر القیس کو بہت سے خط آتے تھے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ یزید نے بھی خط لکھا تھا، اور جب یزید کا خط پہنچا تو بی بی نے چہرہ پھیر کے کہا بابا اسے پیغام بھیج، شریفوں کے رشتے شریفوں سے ہوتے ہیں۔ جب یہ خط آیا عمر القیس نے خط بی بی کو دیا، عزادار بی بی کو خط دیا۔ ایک مرتبہ بی بی ام رباب نے وہ خط پڑھا، خط میں لکھا ہوا تھا ام رباب میں زہرا کا فرزند ہوں، میں ابن زہرا ہوں۔ ام رباب میں وہ ہوں کہ جس کے دروازے سے ملائکہ اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ ام رباب میں وہ ہوں کہ جس کی ماں کی خدمت کے لیے جنت سے حوریں آتی ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جس کا جھولا جبریل جلایا کرتے تھے، ہمارے گھر کا طواف ملائکہ کرتے ہیں۔ خط میں سارا تعارف کروا کے آخری سطر میں لکھا ام رباب یہ میرا تعارف ہے، صفحے کا دوسرا حصہ ضرور پڑھنا۔ جب صفحہ الٹا تو بی بی ام رباب نے پڑھا کہ اس میں لکھا تھا رباب بے شک ہمارے گھروں کا طواف ملائکہ کرتے ہیں، لیکن کوئی وقت آئے گا کہ یہ گھر چھوڑنا بھی پڑ جائے گا۔ عزادار و بی بی نے اس پیغام عقد کو قبول کیا۔ جب قبول کیا حسین علیہ السلام کے گھر میں، جب گھر میں آئی تو بی بی حجرے میں تشریف فرما ہے کہ بی بی فضہ ام رباب کے حجرے میں آئی۔ بی بی فضہ سے مخاطب ہو کے ام رباب کہتی ہے خط میں تو لکھا تھا کہ اس کی بہنیں بھی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بہن ملنے نہیں آئی۔ عزادارو بی بی فضہ کہتی ہے رباب تو واقف نہیں، اس کی بہنیں کھلے دن حجرے سے باہر نہیں آتی، اس کی بہنیں کھلے دن اپنے گھر میں بھی حجرے سے باہر نہیں آتی۔ عزادارو یہ بی بی ہے، اس نے ایک بچی کو دیکھا لباس میلا ہے، مولا حسین سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ یتیم ہے، اس کا نام سغرا ہے۔ بی بی کہتی ہے اگر میری ذمہ داری میں دے دی جائے، حسین فرماتے ہیں بہت مشکل کام ہے۔ کہا آقا آپ میری ذمہ داری میں دے دیں، یہ سگی ماں کو بھول جائے گی۔ بی بی اس کی ذمہ داری میں آ گئی۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ 24 ذی الحج کو
इस बीबी की गोद में एक बेटी अता की जिसका नाम है फातिमा। नाम फातिमा। एक दिन 4 दिन की फातिमा को बीबी रुबाब ने देखा कि चेहरे से नूर की किरणें बाहर निकल रही हैं। मौला हुसैन को बुला के कहा, आका मैं खैले सैयद हूँ, मेरा सीना इस काबिल नहीं कि ये हस्ती मेरे सीने पे सोए। हुसैन कहते हैं आज के बाद ये फातिमा मेरी सकीना होगी, मेरे सीने का सुकून होगी। अज़ादारों फिर बीबी को हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पे सुलाना शुरू किया। बीबी सीने पे सोती रही। फिर वो वक्त आ गया जो मौला ने खत में लिखा था, रुबाब हो सकता है ये घर छोड़ना पड़े। और रुबाब ने घर छोड़ा, बेटी को साथ लिया, आ गई करबला में। करबला में आ गई। मैंने काफी पढ़ लिया, आपने काफी सुन लिया। अज़ादारों करबला में इसकी उम्र है 4 साल। इस बच्ची की उम्र है 4 साल। आप सैयद हैं, मैं उम्मती हूँ, माफी मांग के ये जुमला कह रहा हूँ। उम्र थोड़ी है, ज़ईफ़ी ज्यादा है। उम्र 4 साल मगर ज़ईफ़ी ज्यादा है। अज़ादारों ये बाबे के सीने का तबीज़ है जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा था। वो करबला में बेटी आ गई। जब मदीने से करबला आई है ना, तो इस बीबी को हुसैन प्यार करते थे। लेकिन सोच के बताओ कि जब वक्त आशूर के बाद उम्मत ने इस बेटी को कैसा जल दिया। अज़ादारों ऐसा जल के जलते हुए खैमे से ये बेटी निकली कि दामन में आग लगी हुई। हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत है, वो कहता है कि बेटी के दामन में आग लगी थी। मैंने चाहा कि कुत्ते की आग को बुझाऊं तो मैंने देखा कि इसके कान जख्मी हैं। मैंने समझा शायद ये कान आग की वजह से जख्मी हैं। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो इस बीबी ने नन्हे हाथ चेहरे पे रख के कहा, बंदा खुदा पलट जा, मैं सैयद ज़ाली हूँ। अज़ादारों ये बीबी करबला से शाम आ गई। करबला से शाम आई तो किस हालत में कि कभी कभी रास्ते में ऊंट से जिसके ऊपर पलान नहीं होते थे ये बीबी गिर जाती। फिर कई मील ऊंट के साथ इसे दौड़ाया जाता। सैयद सज्जाद ताज़िया ने खा के भी कहते बगैर तो बेटा गिर जाए तो फिर कोई बात नहीं, ये हमारी गैरत है। अज़ादारों शाम के जिंदान में ये बीबी है और शाम के जिंदान का ये लम्हा सैयद सज्जाद कभी नहीं भूले। जब मदीने में वापस आए हैं तो तब भी सैयद सज्जाद कोई लंबा मुसाहिब नहीं पढ़ते थे, बस एक ही जुमला कहते थे, हाय शाम। मोमिन के लिए भी ये जुमला काफी है, बस एक ही जुमला कहते, हाय शाम। मदीने में मेरे मौला के पास 2 फर्जंद हैं, एक ज़ैद एक बाकर। ये हजरत ज़ैद से ज़ैदी सैयद और 4 साल की उम्र है ज़ैद की, 23 साल उम्र है बाकर अलैहिस्सलाम की। एक दिन अपने भाई बाकर की गोद में बैठ के 4 साल का ज़ैद कहता है भैया बाकर, ये शाम में क्या हुआ था जो बाबा हर वक्त हाय शाम कह के रोता है। अज़ादारों इमाम बाकर कहते हैं ज़ैद शाम में आपकी एक पुत्री कैद थी, उसके जिंदान पर छत नहीं थी, ईंटों का सराना बना के सोया करती थी। जब सुबह होती तो ये बीबी परिंदों को उड़ते हुए देखती, सवाल करती, सैयद सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाते रिज़्क़ की तलाश में। जब शाम को परिंदे पलटते तो फिर बीबी मासूमाना सवाल करती, अब ये कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहते ये अपने घरों में जा रहे हैं। अज़ादारों जैसे ही जुमला सुनती एक बार रो के कहती, परिंदों के घर हैं, हमारा कोई घर नहीं। इमाम रो के कहते सकीना हर किसी ने वतन चले जाना है, तेरा वतन यही शाम है।
दिया, पैगाम आ गया कि सकीना को कहो या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। इसका रोना हमारी नींदों को हराम करता है। आज़ादारो, हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन के फर्जंद ने फरमाया कि अगर बाबा का सर आ जाए तो ये नहीं रोए। आज एक दिन ऐसा हुआ कि तश्त में मेरे मौला का सर ऊपर रुमाल रख के जिंदान में लाया गया। जैसे ही जिंदान में सर आया, सर से रुमाल हटा, बीबी की निगाह पड़ी। जैसे बच्चे देर के बाद बाबा से मिलते हैं, ऐसे तड़प के उठी, उठ के कहा, हाय बाबा, मुझे लोगों ने बड़ा मारा है। बाबा मेरे जख्मी कान गवाह हैं, बाबा मेरे नीले रुखसार गवाह हैं। और एक मर्तबा जमीन पे लेट के कहा, बाबा मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज आ तू मेरे सीने पे सो जा। अज़ादारों, बीबी ने एक मर्तबा सीने पे अपने बाबा का सर रखा। बाबा का सर रखना था। सकीना ने बाबा के सर का बोसा लिया। बोसा का लेना था कि चेहरे पे मौत की जर्दी आई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने आवाज बुलंद की, इन्ना लिल्लाहि, आवाज का बुलंद करना था। बीबियों ने जिंदान में मातम बर्पा किया। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं, फूफी अम्मा सफरों की थकी हुई मारी गई, फूफी अम्मा जख्मी कानों वाली बहन मारी गई। अदादारों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने बैन बुलंद किया और लोहे के जुमले हैं, सकीना मैं गरीब वतन हूँ, तुझे कफन कहाँ से दूँ। आले मोहम्मद का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस जिक्र को शर्फ कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह, जो आंसू मौला हुसैन और उसकी औलाद के गम में निकलते हैं, उन आंसू के बदले में हर मोमिन, हर सैयद को दुनिया के हर गम से अमान अता फरमा। मेरे अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मरहूमीन इस तारे पानी से जा चुके हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। आले अबा का वास्ता, आले यासीन का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें तौफीक अता फरमा कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया कर सके। मेरे अल्लाह, हम तो क्या हैं, हम कुछ भी नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इतना बुलंद है कि सैयद सज्जाद फरमाते हैं, खून के आंसू रो के, बाबा जो तुझे रोने का हक था वो हमसे अदा न हुआ। मेरे अल्लाह, हमसे वो हक तो अदा नहीं हुआ, लेकिन हर मादनी को, हर मोमिन को, हर सैयद को तवील उम्र अता फरमा। उनके दिलों को आज़ादारी इमाम मज़लूम करबला से मुनव्वर फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, सादात की औलादों में, उनके रिज़्क़ में, जान में, माल में अपनी खैर और बरकतों का नज़ूर फरमा। मेरे अल्लाह, जो दुआएं ज़ेर लब नहीं आती, तू अलीम बिज़ात सदूर है, उन दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, हमारे आखिरी वारिस हुज्जत खुदा इमाम अल असर का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। नासरीन इमाम में शुमार फरमा, इमाम के सिपाहियों में महशूर फरमा। जिसने भी अदादारी इमाम मज़लूम करबला के लिए जान माल, जिससे भी मेरे मौला कोशिश की है, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा के उसे अजर अज़ीम अता फरमा। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अल्लाहुम्मा कुन्नि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपनी दुआओं की बुलंद सलवात